Hello, welcome back once again in Fundamentals of ICT subject. So in the last lecture, we have completed the third topic of this particular chapter, unit number 3, Microsoft Excel spreadsheet chapter. So in the last lecture, we have completed till the topics such as formatting cells and sheet. In the last lecture, we have completed the formatting cells and sheet, and in that lecture, we have seen how to change the settings of cell. For example, text option, font, text alignment, merge and wrap. Similarly, for applying borders and shading and adjusting the cell margin. And in the end, we have completed in cell formatting with orientation, like changing the orientation in portrait or landscape, and in the end inserting header and footer. So till here we have completed in our last lecture of Microsoft Excel. Today we are going to start very important topic related with this particular chapter, Microsoft Excel, is working with formula. Working with formula, for which the Microsoft Excel is known, is for using actually the use of formula only. We are able to use the different formula in Microsoft Excel, which makes our work easier. For that purpose, the Microsoft Excel is very much familiar and known. So working with formula, so we are going to see how we are able to use the formulas in Microsoft Excel, and what is the benefit of using such formulas, and how it makes our work easier. Just making one formula and it is applying to all the other cells, it makes work easier for us. So we are going to see in detail of this section, working with formulas, creating formulas, copying formulas, how we are able to copy such formulas and apply to other cells also. Common spreadsheet functions such as, so under that we are going to see the formulas functions such as sum, average, minimum, maximum, date, mathematical functions also such as square root, power, and applying condition using if. So first we are going to study this topic, working with formulas properly in Microsoft Excel. So for that, I am opening my one file, one sample data. So this is my Microsoft Excel file, and I have made some sample data. This is the sample data over which I am going to work, operate in this sample data. So in the last lecture, we have just completed how to merge the cells. Means what? Two or more cells, how we are able to merge. Like similarly, if you are observing this course outcome cell, so this cell is merged with the help of two cells, that is C and D column cell. So C and D column, both cells are merged together to form one cell. So that's why it is written over here, course outcome. Then we have seen in the last lecture the alignment also. If you are able to see it properly, the text alignment is exactly at center. If I want to shift it in the left side, so with the help of left alignment, I am able to shift it in the left side. So I have made it in the middle center. So in this way, you are able to change the alignment also. And next, we have seen how to shade the text also. So for shading the text, it is given under the font section. If you are able to see this capital letter A, this is font color. If you want to edit or if you want to change the color of the text, so with the help of this option, you are able to change the color. If you want some different color, you are able to select the different color available to you from the various colors. So in this way, we are able to change the color also. And most important, in the last lecture, we have seen the use of wrap text. If you want to occupy your text under that much of column width only, so with the help of wrap text, you are able to do it. So with the help of wrap text, if you want to occupy your all the text written under that cell within that column width only, so with the help of this wrap text, you are able to see your all the text written under that cell within that column width only. तो बात समझ में आ रही है? हम लोग ने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक ये सब चीज किए थे, wrap text का यूज देखे थे. तो wrap text से हम लोग क्या
पॉसिबल ही होती है, क्या चीज होती है कि जो भी आपका टेक्स्ट जो पहले विजिबल नहीं हो रहा था विद इन दैट कॉलम विद द हेल्प ऑफ दिस wrap टेक्स्ट आपको विद इन दैट कॉलम ऑल टेक्स्ट विल बी अवेलेबल, जस्ट क्या हो जाएगा, रो की हाइट बढ़ जाएगी। तो ये टेक्स्ट इस तरीके से पूरा अच्छी तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। मर्ज एंड सेंटर तो आपको क्लियर कर दिया था, दो सेल के कैसे मर्ज किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्शन मर्ज कर सकते हैं हम लोग। आज हम लोग को कुछ अच्छा इसके अंदर अंडरस्टैंड करना है, कुछ समझना है कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मूलास वगैरह को अप्लाई कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और वो फॉर्मूला का किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं बाकी के सेल में भी कॉपी करके। सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज समझाना चाहूंगा। ये जस्ट मेरा एक सैंपल डेटा है। ये सैंपल डेटा में क्या है, स्टूडेंट का नाम है, और इस सैंपल डेटा में स्टूडेंट के नाम के बाद में ये स्टूडेंट के रोल नंबर्स है, रोल नंबर सीरियली लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें हर क्वेश्चन में उसने के कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किया वो लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो एक क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 1A से लेके यहाँ तक 2F तक आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, क्वेश्चन नंबर्स थे। हर इंडिविजुअल क्वेश्चंस में वो कितना स्कोर किया है हर स्टूडेंट ने, उसका मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। फिर लास्ट सेकंड लास्ट कॉलम में उसका टोटल मार्क्स है। तो ये टोटल आउट ऑफ 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। आउट ऑफ दैट 20 मार्क्स वो स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर किया हुआ, ये लास्ट कॉलम में आपको नजर आएगा इधर पे। अब ये एक सैंपल डेटा जस्ट मैंने लेके आया हूँ आपके सामने एक्सेल फाइल में। अब इसी के ऊपर हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज को किस तरीके से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक आपको बेसिक चीज समझाता हूँ कि जैसे कि अब ये सीरियली रोल नंबर लिखा हुआ है, देयर आर टोटल 38 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 38 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ये सीरियली रोल नंबर लिखा हुआ है। तो अब एक्सेल में एक और बेनिफिट है, आपको सीरियली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी। आप जस्ट क्या करो, स्टार्टिंग के 1 और 2 स्टूडेंट के सीरियल नंबर लिख दो, रोल नंबर लिख दो। आपने 1 और 2 स्टूडेंट नंबर के सीरियल नंबर लिख दिए। जस्ट आपको क्या करना है, 1 और 2 जो आपने रोल नंबर लिखे स्टार्टिंग के 2 स्टूडेंट्स के, वो दोनों सेल को खाली सिलेक्ट करना है। दोनों सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ कर्सर एंड माउस। तो विद द हेल्प ऑफ माउस एंड अपना माउस की वजह से मैंने बस दोनों को सिलेक्ट किया। अब क्या करना है, आपको एक्सट्रीम राइट में जाना है, बॉटम के एक्सट्रीम राइट में जाना है सेल नंबर 2 से। तो इस तरीके का प्लस साइन दिखेगा आपको। तो ये प्लस साइन जो दिखेगा, ये प्लस साइन या ऑटोमेटिकली आपको सीरियली नंबर तक लेके जाएगा, क्योंकि आपने जो अभी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया ये सीरियली नंबर जा रहा है, 1 और 2 जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली ने ये आगे के सेल में कॉपी कर देगा सीरियली आगे के नंबर को। मैं जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते जाऊंगा, नीचे तक लेके जाऊंगा, पहुंचाते हुए जाऊंगा, ऑटोमेटिकली वो जितने सेल तक आप लेके जाओगे अकॉर्डिंगली वो सीरियल नंबर तक पहुंचा देगा। तो फ्रॉम स्टार्टिंग सीरियल नंबर 1 2 खाली मुझे देना था ताकि वो ऑप्शन में आना चाहिए था। तो 1 और 2 ऑप्शन सीरियली मैंने डाला, एंट्री किया। जस्ट जो सेल से आपको लेना है बॉटम ऑफ द सेल पे पहुंचाना है, एक्सट्रीम राइट पे ये प्लस साइन करके मार्क नजर आएगा, और उसी को आगे तक आपको लेके चले आना है, माउस को क्लिक करते हुए नीचे तक लेके चले जाना है। तो ऑटोमेटिकली आपको सीरियली ये नंबर पहुंचा देगा, बना के दिखा देगा आगे के सेल में। तो ये स्टूडेंट का जो रोल नंबर था जो आपको मैनुअली इंसर्ट करना पड़ता हर स्टूडेंट के लिए। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेल में आपने क्या किए, स्टार्टिंग के खाली 1 और 2 रोल नंबर को डाले, उनको दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, और फिर यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे तक लेके चले गए। तो एंड ऑफ दी रोल नंबर 38 तक आपको ये पूरा कंटिन्यू शो करके दिखा देगा, करके ऑटोमेटिकली करके दिखा देगा। आई होप आप लोग को ऑटोमेटिक नंबर सीरियली कैसे लेना है वो चीज आपको क्लियर हो गई होगी। समझ में आया आप लोग को? यस सर। ओके। दूसरी बात, अगर आपको हर कॉलम में ही 1 चाहिए था, ऑटोमेटिक कॉपी चाहिए था, तो आप वैसा भी कर सकते थे। आपको जस्ट क्या करना पड़ता, सिर्फ ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करना पड़ता। तो ऊपर वाले सेल में अभी जो कंटेंट लिखा हुआ है 1, वो ऑटोमेटिकली आपको अगर हर 1 को कॉपी कराना है नीचे तक, तो जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 1 वाले सेल वाले जहां पे आपने 1 को लिखा हुआ है उस सेल को ही सिलेक्ट करना है, और नीचे बॉटम में जो प्लस साइन मार्क नजर आएगा उसी को आपको लेके चले जाना है। तो ऑटोमेटिकली सब सेल में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 विजिबल हो जाएगा। तो आपको सिर्फ अगर 1 हर सेल में अगर कॉपी करके दिखाना था, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन इंडिविजुअल सेल, जस्ट राइट इन ओनली 1 सेल, और वो पर्टिकुलर ऑटोमेटिकली कॉपी कर दो उस पर्टिकुलर चीज को, प्लस साइन से लेके नीचे तक लेके चले जाओ, तो ऑटोमेटिकली वो 1 कॉपी नजर आएगा, आपको दिख के नजर आएगा। तो ये तो हो गया, मैंने अपना क्या किया, यहाँ पे मैंने आपको सीरियली रोल नंबर आपको इंसर्ट करना दिखा दिया, समझा दिया। ये बेसिक चीज थी, ये चीज दी हुई नहीं थी इसके अंदर,
तो जस्ट वो मैंने आपको समझाया इधर पे। अब मेन कॉपिंग फार्मूलाज वगैरह कैसे कॉपी करते हैं, तो ये कॉपी फार्मूला वैसे ही रहेगा जैसे आपने एक्सेल में जो कंटेंट लिख दिए उस बस उसको सिलेक्ट करके नीचे तक आप लेके चले जाओ, प्लेस करते चले जाओ, ऑटोमेटिकली वो चीज़ कॉपी हो जाएगी। अब हम लोगों को यहाँ पे ना कुछ फंक्शंस के बारे में सीखना है। फंक्शन में सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है आपको सम, यानी हम कैसे सम करेंगे, एडिशन करेंगे। जो सेल्स को आपको सम करना है, एडिशन करना है, तो उसका एडिशन कैसे करेंगे। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर 1 स्टूडेंट था, इसने जो भी मार्क्स इसने स्कोर किया पूरे हर क्वेश्चन में इंडिविजुअल में, तो उसका टोटल मार्क्स मुझे इधर पे दिखाना है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो मार्क्स जो लिखा हुआ है इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, आपके सामने न्यू करके दिखाता हूँ पूरा। ठीक है, तो अब ये मुझे टोटल मार्क्स लेके आना है, यानी रोल नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1A से लेके क्वेश्चन नंबर 2F तक जो भी उसने मार्क्स ऑब्टेन किया है उसका टोटल सम मुझे यहाँ पे दिखाना है, ये टोटल मार्क्स वाले सेल में दिखाना है। ओके, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1A से लेके 2F तक ये रोल नंबर 1 के स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है, 1 + 1 2 + 1 3 3 + 2 5। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे ऐसा मैं करते जाऊं मैनुअली, तो मैनुअली तो करते जाने में मुझे तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैनुअली करते जाने में तो मुझे हर एक का प्लस खुद से करना पड़ेगा, और फिर 5 लिखूँ डायरेक्टली, इधर 5 लिखूँ फिर इसका प्लस करूँ। अब एक्सेल में आप डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज करके कैसे उसको कर सकते हैं वो देखना है। सबसे पहले जहाँ पे आपको टोटल मार्क्स लेके आना है, पहले उस सेल को सिलेक्ट करो, क्लिक करो। तो जैसे अभी मुझे कर्सर को कहाँ पे ले जाके क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे टोटल मार्क्स उसका शो कराना है। रोल नंबर 1 का टोटल मार्क्स मुझे कहाँ पे शो कराने का है, कौन से सेल में, Q6 में। तो मैंने यहाँ पे Q6 को सिलेक्ट किया, कॉलम नंबर Q और रो नंबर 6, तो ये सेल बिलोंग करता है, तो मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया। अब जब आप सिलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको राइटिंग करने का कुछ ऑप्शन नहीं नजर आता है, यहाँ पे सिर्फ बोल्ड प्लस साइन नजर आता है। तो यहाँ पे राइटिंग का, टेक्स्ट का कुछ फंक्शन नहीं रहा, यानी कीबोर्ड वाला कुछ फंक्शन आप यूज नहीं कर सकते इधर पे। इधर पे आप टाइप करना चाहोगे तो आपको कुछ यूज करके नजर नहीं आएगा, इधर पे नहीं नजर आएगा। तो आप कहाँ पे नजर आएगा, आप कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सिलेक्ट करोगे तो मतलब काम इधर ही पे हो रहा है। आपको मेन चीज यहाँ पे भी समझाना है कि जो एडिटिंग वगैरह है, आप एडिटिंग वगैरह करना चाहोगे तो आपको इधर पे एडिटिंग करने का नजर नहीं आएगा ऑप्शन। एडिटिंग का ऑप्शन आपको इधर पे नजर आएगा, ये जो ऊपर की विंडो है जिसको क्या बोलते हैं फॉर्मूला बार, ये ऑटोमेटिकली रहता है इसके साथ में। ये फॉर्मूला बार में आप अपनी कर्सर को प्लेस कर सकते हो। आप चाहोगे कि मैं कर्सर का पोजीशन इधर पे प्लेस करना चाहूँ, तो डायरेक्टली तो प्लेस नहीं होगा, आप जो टेक्स्ट लिखोगे वो नजर तो आएगा, लेकिन आपको कुछ एडिट करना हुआ, बैक स्पेस करना हुआ, तो फिर आप सोचोगे कि मैं कर्सर को बैक स्पेस कहाँ पे लेके जाऊँ, कैसे पोजीशन चेंज करूँ इसकी। तो वो चीज आपको इधर पे नजर आएगी फंक्शन बार में। जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे ना वो इधर पे आपको विजिबल होगा, और यहाँ पे आप अपना जो भी एडिशन करना चाहते हो वो एडिशन इधर पे कर सकते हो। तो बात मेरी ये चल रही है यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे ये सेल में टोटल मार्क्स दिखाना है रोल नंबर 1 का। तो अब उसका फॉर्मूला कैसे यूज करना है, मुझे सम करके फॉर्मूला है वो कैसा यूज करूंगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला बार पे मैंने अपने कर्सर को प्लेस किया। अब इजिकल टू सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा, इजिकल टू जो भी फॉर्मूला यूज करना है सबसे पहले आपको इजिकल टू एंटर करना होता है। तो इजिकल टू एंटर किया, फिर इसके बाद सम करके फंक्शन है, तो सम करके फंक्शन को मैं लेके आऊंगा। देखो जैसे मैं एस यू लिख रहा हूँ ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो बहुत सारे फंक्शन है वो दिखाता है एस यू से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखूंगा तो सब्स्टिट्यूट है, सब टोटल है, फिर तीसरे में आपको फंक्शन नजर आएगा सम करके। तो आप चाहे तो इधर पे भी आपको समझ में आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सम करके आ गया फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे ना क्या होता है कि जो फॉर्मूला, जो फंक्शन आप यूज कर रहे हो उसका हाईलाइटेड करके दिखा रहा है, उसका पैटर्न भी हाईलाइटेड करके दिखा रहा है। मतलब आपने सम फंक्शन लिखे, ओपन ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ गया। अब कौन कौन से नंबर का सम कराना चाहते हो तो वो नंबर डालना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, वो डायरेक्टली नंबर नहीं डालना है, हम लोग को क्या करना है, जो सेल से लेके जो सेल तक का टोटल मार्क्स करना है उनको खाली लेके आने का है। तो अभी फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1A का मार्क्स कहाँ पे रहेगा, रोल नंबर 1 का ये सेल में रहेगा। कौन सा सेल है ये सेल आपका ऑटोमेटिक, जब आप जैसे ही क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली लिख के दिखा देगा E6। आपने ये सेल पे क्लिक किए, ऑटोमेटिकली वो सेल का उसने नंबर ले लिया उधर पे E6। अब आपको कहाँ से लेके कहाँ तक का सम कराने का है, तो आपको सम कराने का यहाँ से 1A से लेके आप सिलेक्ट करते जाओ खाली विद द हेल्प ऑफ माउस, उसको आप खाली क्या करते जाओ, सिलेक्ट करते जाओ। 1A से लेके आपको लेके जाना था, टोटल मार्क्स जो कराना था पूरा कहाँ तक कराना था, ये
2F वाले क्वेश्चन तक। तो 2F वाला क्वेश्चन कौन सा सेल है, वो P6। तो ऑटोमेटिकली देखो ये ले लेता है E6 इज टू P6। तो यानी ये सेल को जो आपने सिलेक्ट किए, वो सेल का टोटल मार्क्स कराना था, उनको आपने सिलेक्ट किया। अब इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर दो, ओपन था, क्लोज कर दो, एंटर कर दो। तो आप जैसे एंटर करोगे तो आपको इसका टोटल मार्क्स नजर आएगा। यू आर एबल टू सी द टोटल मार्क्स ऑफ द रोल नंबर 1 इज 5। जो मैनुअली हम लोग देखे थे 1 + 1 + 1 + 2 5 होता है। तो हम लोग ने क्या किए, जस्ट खाली सम का फंक्शन यूज किए। पहले तो सबसे पहले इजिकल टू डालना है। इजिकल टू डालने के बाद में आप सम लिखेंगे। ऑटोमेटिकली सम जैसे लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट, अब जहां से जहां तक का आपको सम कराना है, तो वो सम आप 1A से लेके आपने कहाँ तक का लेके गए, 2F तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपको क्या करता हूँ मैं, दूसरे रोल नंबर 2 का भी दिखा देता हूँ सेम पैटर्न में। अब देखो रोल नंबर 2 का टोटल मार्क्स मुझे कहाँ पे दिखाने का है, ये उसके नीचे कौन सा सेल नंबर है, ये Q7। तो Q7 सेल में मुझे यहाँ पे टोटल मार्क्स रोल नंबर 2 का दिखाना है। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इजिकल टू सम करके फंक्शन, ओपन ब्रैकेट। अब कहाँ से कहाँ तक का इसका मार्क्स रहेगा, इसका मार्क्स रहेगा रोल नंबर 2 के आगे का ये सेल से लेके E7 से लेके कहाँ तक रहेगा, E7 से लेके P7। बस मैंने सिलेक्ट किया, माउस से मैंने क्या किया, ये सेल्स को सिलेक्ट किया जिसका सम कराना है, टोटल कराना है। ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली उसका टोटल मार्क्स आपको नजर आएगा। ब्रैकेट खुद ओपन करेगा या हम लोग करेंगे? देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग ये नीचे वाला सम का फंक्शन यूज कर रहे हो, SUM, अगर ये आप लोग क्लिक कर रहे हो, उस पर डबल क्लिक कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली देखो ये ओपन ब्रैकेट आ जाता है। मैंने नीचे जाके उसको डबल क्लिक किया तो ओपन ब्रैकेट आ गया। अगर आपको उससे लेना देना नहीं है, आपको मालूम है, डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला डायरेक्टली लिखो ना, SUM। मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, मैं नीचे कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, SUM मैं खुद से ओपन ब्रैकेट यूज किया, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ओपन ब्रैकेट लेना है या डायरेक्टली नीचे के जो फंक्शन कमांड दिया हुआ है उसमें से करना है। तो आप जैसे ही लिखने जा रहे हो ना, SUM लिखने जा रहे हो, तो आपको कुछ लिस्ट ऑफ फंक्शन नजर आता है, तो आपको समझ में आता है हाँ मुझे तो ये फंक्शन यूज करना है, तो उस पर डबल क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। और अगर आपको वो फंक्शन नीचे से दिए हुए लिस्ट ऑफ फंक्शन में से फंक्शन नहीं यूज करना है, तो डायरेक्टली खुद से अपने तरीके से फॉर्मूला डाल दो पूरा। SUM लिखो, ओपन ब्रैकेट लिखो, और फिर जो आपको सेल से सम कराने का है वो सेल को सिलेक्ट कर लो, और फिर खुद से फिर ब्रैकेट को क्लोज करो। अब ब्रैकेट क्लोज आप ही को करना है, खुद से ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर कर दो, तो ये आपको टोटल मार्क्स नजर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, क्लियर अभी? तो अभी अपने को क्या करना है, या ऐसे ही सब जगह पे करते रहने का, हर बार जाओ रोल नंबर 4 के लिए जाओ, उसके लिए फॉर्मूला यूज करो। हर बार अपने को ऐसा करना नहीं है। आपने एक बार खाली कर लिए ना, जो सेल में आपने एक बार फॉर्मूला इंसर्ट कर दिए, जस्ट आपको क्या करना रहता है, वही सेल में जाके जो अपना कॉपी वाला मामला है उसी को वहां पे से नीचे बॉटम में से जो प्लस साइन आपको नजर आएगा, उसी को आपको खाली क्लिक करते चले जाना है, क्लिक करते चले जाना है, क्लिक करते चले जाना है। तो आपको ऑटोमेटिकली देखो सारे रोल नंबर का मार्क्स सम करके दिखा देगा। यानी आपने एक सेल में फॉर्मूला को अप्लाई किए, तो विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला यू आर एबल टू अप्लाई इट इन ऑल दी सेल्स। खाली आपको क्या करना रहेगा, एक ही बार मेहनत करना है, एक ही बार फॉर्मूला डालना है सम का। पहले रोल नंबर 1 के लिए आपने डाल दिए, टोटल मार्क्स लेके आ गए। अब वो जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किए वो सारे आप सेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, ये प्लस साइन को नीचे तक सिलेक्ट करना है, हर सेल में पहुंचा देना है। आप कोई भी रोल नंबर वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप रोल नंबर 17 का मार्क्स वेरीफाई कर लो, तो कितना होता है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 4 15। तो आपको टोटल मार्क्स 15 नजर आएगा। तो ऑटोमेटिकली देखो अभी मैंने ये सेल पे क्लिक किया ना, तो ऑटोमेटिकली देखो सम का फॉर्मूला भी आपको नजर आएगा। जैसे मैंने ये सेल पे क्लिक किया तो इसका फॉर्मूला नजर आएगा। यानी ये सम कर रहा है कौन से लेके कौन से सेल तक का, तो ये सेल E24 से लेके T24 तक के सेल का टोटल मार्क्स कर रहा है। तो मतलब वो ऑटोमेटिक फॉर्मूला कॉपी हो गया, हर सेल में फॉर्मूला कॉपी हो गया वो। तो मैंने सम का फॉर्मूला एक ही सेल में अप्लाई किया और फिर उसी के बाद सारे सेल में कॉपी कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उनका सारा मार्क्स होते चला गया, अपने हिसाब से होता चला गया। समझ में आया आप लोग को?
ये एक्सेल का यूज समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये हो गया अपना, एक ही हम लोग ने काम किए, तो एक ही काम करने से अपने को क्या हो गया, सब सेल में अपने को सेम फंक्शन नजर आ जाएगा। तो ये तो सर टोटल फॉर्मूले, हाँ, टोटल कितना फॉर्मूला है? अभी फिलहाल जो अपने को सिलेबस में दिया हुआ उतना तो कर लेंगे, बाकी आप तो फॉर्मूलेस तो बहुत रहते हैं। एक एग्जाम्पल है, खाली एग्जाम्पल के लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब जो जो चीज सीखने के लिए बोला है तो वो चीज हम लोग समझ लेते हैं, कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको सम का समझा दिया, ठीक है, ये सम हो गया। अब इसी के बाद आपको देखेगा दूसरा क्या यूज करने बोल रहा है, एवरेज। एवरेज तो आपको पता ही होगा ना, एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज के लिए क्या करना पड़ता है, जितने भी नंबर का एवरेज करना होता है उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर, बराबर ना। ये बेसिक आपको फॉर्मूला Yes, पता sir. होगा। जितने भी नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है उन सबको पहले प्लस करो और टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, तो उनको आपको ऐसे इस तरीके से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, म्यूट कर दो जो भी है, प्लीज म्यूट। ओके, तो अभी मेरे को आपको दिखाना है एवरेज, एवरेज का दिखाना है, एवरेज का फॉर्मूला। तो अभी मुझे एवरेज, फॉर एग्जांपल ये जो मेरे टोटल मार्क्स जो स्कोर हुए स्टूडेंट्स के रोल नंबर 1 to 30 है, कौन है वो म्यूट कर दे प्लीज, डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, थैंक यू। तो अभी फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि जो भी मेरे ये रोल नंबर 1 to 38 स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए, इनका मुझे एवरेज मार्क्स निकालना है। तो एवरेज मार्क्स निकालने के लिए अभी मैं क्या करूँगा, एवरेज मार्क्स निकालने के लिए, तो फॉर एग्जांपल अभी बाजू में मैं यहाँ पे ये सेल में एवरेज मार्क्स दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, एवरेज मार्क्स दिखाना चाहता हूँ। तो एवरेज के लिए मैं यहाँ पे अलग से फॉर्मूला यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, इक्वल टू एवरेज लिखने का टाइप करूंगा, एवरेज, एवरेज, ठीक है। तो जैसे एवरेज पूरा लिखा तो आपको एवरेज करके यहाँ पे फंक्शन नजर भी आएगा, और यहाँ नहीं तो आप खुद से एवरेज टाइप कर लो, ओपन ब्रैकेट भी अपनी तरफ से यूज कर लो, ठीक है। एवरेज टाइप भी कर लिए, ओपन ब्रैकेट भी यूज कर लिए। अब कौन से सेल से लेके कौन से सेल नंबर तक का एवरेज मार्क्स आपको कराना है वो खाली आपको सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल ये टोटल मार्क्स जो है, ये पूरे टोटल मार्क्स के कॉलम का मुझे एवरेज कराना है। तो रोल नंबर 1 से लेके नीचे रोल नंबर 38 तक के टोटल मार्क्स के जो सेल को मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने Q6 से लेकर Q43 तक ये टोटल मार्क्स को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज करो, एंटर कर दो। तो आपने एंटर कर दिया तो आपको यहाँ पे ऊपर इसका एवरेज मार्क्स नजर आएगा। तो ये जो दिखा, ये सेल में क्या है, ये सेल में जो नंबर दिखा रहा है वो किसका है, वो एवरेज का दिया हुआ है, एवरेज ऑफ Q6 to Q43, यानी वॉट एवर द टोटल मार्क्स जो स्टूडेंट लोग ने ऑब्टेन किए, वो पूरी क्लास का जो एवरेज मार्क्स है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन में से आउट ऑफ 20 वो एवरेज मार्क्स कितने हैं, 12.23684। तो ये एवरेज का फॉर्मूला हो गया, यानी सम की जगह पे जस्ट मैंने क्या यूज कर दिया, अभी एवरेज यूज कर दिया। तो जो सेल का आपको एवरेज कराना है उसको खाली प्रॉपर सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो नंबर का आपको एवरेज कराना है उसको प्रॉपरली सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर ले तो आपको ये एवरेज दिखाई देगा, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई, आपने एवरेज का सीखे। इसी के बाद आपको बाजू में क्या दिखेगा, मिनिमम मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स। मतलब क्या होता है कि ये जो टोटल मार्क्स आपको दिख रहा है आपके स्टूडेंट का, तो इन स्टूडेंट में से मिनिमम मार्क्स किसका है, मैक्सिमम मार्क्स किसका है, क्या है वो आपको शो कराना है। तो उसके लिए भी आप सिंपली फॉर्मूला यूज करो। अभी मैं नीचे आपको मिनिमम मार्क्स दिखाऊंगा, यानी टोटल ये जो मार्क्स ऑब्टेन हुए उनमें से मिनिमम मार्क्स क्या है वो आपको दिखाना है। तो इक्वल टू, और फिर आप टाइप करोगे मिनिमम, तो मिनिमम करके देखो आपको फंक्शन भी नजर आएगा, यहाँ पे मिनिमम करके फंक्शन भी नजर आएगा। चाहे तो आप डायरेक्टली ये फंक्शन पे डबल क्लिक करके लेके आ सकते हो, या नहीं तो आपको सिंपली ओपन ब्रैकेट खुद से टाइप कर लो, मिनिमम ओपन ब्रैकेट। अब मिनिमम मार्क्स किसमें से किसमें दिखाना है पूरा, ये टोटल पूरे मार्क्स जो ऑब्टेन हुए स्टूडेंट के, वही Q3 to Q46 सेल को पूरा सिलेक्ट करो। अब इन पूरे मार्क्स में से जो मिनिमम मार्क्स रहेगा वो आपको दिखाई देगा अलग से। तो देखो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स अभी कितना दिखाई दे रहा है आपको, 0 मार्क्स। मतलब कोई ना कोई स्टूडेंट तो है जिसने मिनिमम मार्क्स मतलब 0 मार्क्स लेके आया है। तो आर यू एबल टू सी दिस रोल नंबर 6, रोल नंबर 6 का 0 मार्क्स है। और भी कोई हो सकता है जिसका 0 मार्क्स हो, वो भी दिखाई देगा।
तो जो भी मिनिमम मार्क्स है वो आपको इधर पे दिखाई देगा। तो पूरे ये नंबर्स में जो मिनिमम मार्क्स था वो कितना मार्क्स था, 0 मार्क्स था, तो इसके लिए अलग से 0 मार्क्स दिखाया। अब इसी तरीके से आपको मैक्सिमम मार्क्स भी दिखाने का है, तो मैक्सिमम के लिए खाली मिनिमम की जगह मैक्सिमम यूज कर लो, इक्वल टू मैक्सिमम ओपन ब्रैकेट, कौन से सेल से कौन से सेल तक का, जो टोटल मार्क्स वाला सेल है। तो टोटल मार्क्स वाला सेल कहाँ से, यहाँ से लेके आप पूरा इसको सिलेक्ट करो, नीचे तक लेके जाओ, रोल नंबर 38 के मार्क्स तक लेके जाओ। ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो। तो आप एंटर करोगे तो आपको ऊपर वो सेल में टोटल मार्क्स नजर आएगा, मैक्सिमम मार्क्स नजर आएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स यानी ये टोटल मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 20 मार्क्स। तो आपको कहीं ना कहीं आपको 20 मार्क्स नजर आएगा। यस, तो ये रोल नंबर 11 का 20 मार्क्स है, तो ये मैक्सिमम है। आउट ऑफ दिस मार्क्स ऑब्टेन, द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन इज 20 एंड द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन इज 0। तो जो भी आपको नंबर्स में से मिनिमम नंबर दिखाना है, मैक्सिमम नंबर दिखाना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला मिनिमम मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स आप वो दिखा सकते हो। एवरेज के लिए एवरेज दिखाई देगा। तो जस्ट ये क्या है, सब मैथमेटिक्स के फॉर्मूले है। तो हम लोग ने फंक्शंस है, फंक्शंस सीखे, सच एज सम का फंक्शन देखे, एवरेज का फंक्शन देखे, मिनिमम का फंक्शन देखे, मैक्सिमम का फंक्शन देख लिए। अब इसके आगे कुछ और चीज भी बोल रहा है कि अगर आपको डेट लेके आना है तो डेट कैसे लेके आ सकते हो। डेट भी क्या एक फंक्शन के तौर पे, अगर आपको कहीं डेट लेके आना है, हम लोग ने ये डेट तो डायरेक्टली उसमें देखे थे किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट में ही डेट का ऑप्शन नजर आता था, लेकिन अब यहाँ पे डेट का ऑप्शन नहीं है। अब मैं इंसर्ट में गया हूँ तो इंसर्ट में मुझे कहीं पे भी डेट का ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। अगर आपको आपके कहीं पे भी हाईलाइट करना है, डेट दिखाना है, तो आप कहाँ से डेट दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ऊपर यहाँ पे हाईलाइट करना था, डेट दिखाने का था, तो डेट तो दिख रहा नहीं है अभी, यहाँ पे डेट का तो कुछ ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। या तो सिंपली टाइप कर दो, आप लोग सिंपली टाइप कर दो। तो टाइप भी करोगे तो प्रॉपरली वो सिलेक्ट नहीं करेगा, लेगा नहीं वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की मैं डेट डालता हूँ, जैसे कि एग्जांपल है 18/2/2021। तो ये तो आपने टाइप कर दिए। कोई कोई सेल में क्या होता है, कोई कोई सेल में वो डेट को प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करता है। ये तो एक आपने क्या कर दिया, खुद से टाइप कर दिया, तो टाइप करके दिखा दिया। और अगर आपको डेट को भी एक एज अ फंक्शन के जैसा यूज करना है, फंक्शन के पैटर्न में यूज करना है, तो उसको हम लोग फंक्शन के पैटर्न में भी यूज कर सकते हैं। उसको फंक्शन के पैटर्न में कैसा यूज करेंगे, क्योंकि इसलिए देखो ना यहाँ पे सिलेबस में आपको दिया हुआ है डेट जो है ना अलग से फंक्शन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो अभी हम लोग उसको फंक्शन के फॉर्मेट में कैसे लेके आएंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो वही चीज है, अगर आप इक्वल टू करते हो, डेट लिखते हो, डेट, तो जैसे डी लिखने जा रहा था ना वैसे ही आ गया डेट। अब देखो यहाँ पे डेट का पैटर्न बता रहा है, डेट का पैटर्न बता रहा है। पहले बोल रहा है ईयर लिखो, मंथ लिखो, फिर डे लिखो। तो ईयर लिखो पहले 2021, फिर कॉमा डालो, कॉमा डालने के बाद मंथ बोल रहा है तो मंथ डालो 02, फिर कॉमा डालो, फिर डे बोल रहा है तो डे है 18। ब्रैकेट को क्लोज करो, एंटर करो। तो अब ये जो है ना, ये क्या हो गया, ये अब आपका फंक्शन के जैसा डिजाइन हो गया। अब यानी ये सेल में आपने फंक्शन में डिफाइन कर दिया डेट को। अब इसका पैटर्न देखो कैसा है, पहले मंथ बता रहा है, डेट बता रहा है, ईयर बता रहा है, मंथ बता रहा है, डे बता रहा है, और फिर क्या बता रहा है, ईयर बता रहा है। तो ये तो आपने नॉर्मल अपना खुद से टेक्स्ट रिटर्न कर दिया है। और ये क्या है, एक फंक्शन के तौर पे आपने फंक्शन के तौर पे डेट को लेके आए, तो फंक्शन के तौर पे ये डेट को इस तरीके से लेके आए। इतना कुछ खास यूज मुझे तो इसका समझ में नहीं आया, लेकिन आपके सिलेबस में दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया इधर पे। और आगे आप डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे इसको यूज करना है। फिर और भी ऑपरेटर्स है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये तो अभी आपको समझ में आएगा नहीं, इसके लिए मैं ये कवर नहीं करूंगा। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर ये लॉजिकल फंक्शंस है। दूसरा फंक्शन बताता हूँ, मैथमेटिकल फंक्शंस। तो मैथमेटिकल फंक्शंस सच एज स्क्वायर रूट, पावर, आपको पता है ना नंबर का स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, पावर भी लेना पड़ता है। तो ये सब भी फॉर्मूला अवेलेबल है, फंक्शंस अवेलेबल है। जैसे कि अभी बाजू में फॉर एग्जांपल ये जो रिमार्क के कॉलम में मैं ये जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन हुआ इनका स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करूंगा, ये सेल में गया, जहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है उस सेल को पहले सिलेक्ट कर लो। तो रोल नंबर 1 का जो टोटल मार्क्स है उसके बाजू में जो सेल है वहां पर मुझे उसका स्क्वायर रूट दिखाने हैं। तो वहां पे जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा, इक्वल टू, अब SQRT लिखूंगा, स्क्वायर रूट SQRT। तो आपको इधर भी नजर आएगा, स्क्वायर रूट करके फंक्शन नजर आएगा। अब जैसे क्लिक किया तो कौन से नंबर का स्क्वायर रूट करना है वो बाजू में बोल रहा है।
तो मेरे को कौन से नंबर का करना है, ये जो मार्क्स ऑब्टेन हुआ है टोटल मार्क्स रोल नंबर 1 का, वो सेल को सिलेक्ट किया, Q6 ब्रैकेट ओपन किया, एंटर कर दिया। तो अब ये 5 का स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली आपको इधर पे नजर आएगा। अब आपने एक जगह पे फंक्शन में फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, वही सेम चीज को कॉपी कर लो बाकी के सेल के लिए। तो कैसा करने का, जो बताया था उसको सिलेक्ट करो, नीचे का जो प्लस साइन आएगा उसको लेके चले जाओ, नीचे तक का लेके चले जाओ, तो ऑटोमेटिकली आपको सबका स्क्वायर रूट नजर आएगा। जैसे कि 16 का स्क्वायर रूट आपको नजर आ रहा है क्लियरली, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4। तो ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत पड़ती है तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देने का, SQRT फंक्शन ओपन ब्रैकेट। अब जो नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है उस सेल को खाली सिलेक्ट कर लो, बस आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप खाली वो उसको माउस से ना सिलेक्ट कर लो, ऑटोमेटिकली उसका नंबर आ जाता है। ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर कर दो, मार्क्स आ जाएगा अपने आप मार्क्स आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट निकालने का पैटर्न बताया मैंने आपको। फिर इसके बाद दूसरा आपको दिया हुआ है, स्क्वायर रूट के बाद दिया हुआ है पावर। अब पावर मतलब समझ में आया ना, रेस्ट टू द पावर 2, रेस्ट टू द पावर 3। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपको यहाँ पे रेस्ट टू द पावर 2 निकालना है, पावर ऑफ 2 यानी 5 का स्क्वायर, तो पावर बोलते हैं उसको। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो आपको पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू पावर वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो पावर वाला फंक्शन देखो यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ओपन ब्रैकेट आ गया। अब देखो इसका पैटर्न भी बताता है नीचे, तो जो नंबर का आपको पावर करना है पहले तो वो नंबर को लेके आओ, कॉमा कितने का पावर चाहिए, पावर ऑफ 2 स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर चाहिए, क्यूब चाहिए, जो भी पावर चाहिए, तो आप वो पावर का नंबर यहाँ पे लिख के दिखा सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे कौन से नंबर का पावर लेना है, ये टोटल मार्क्स वाले नंबर का पावर लेना है, तो पहले इस पर सिलेक्ट किया तो वो आ गया। अब मुझे कॉमा डालना है, कॉमा डाल के अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कितने का पावर चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 का पावर चाहिए, तो मैं 2 करूंगा, 2 डालूंगा, कॉमा के बाद 2 डालूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर कर दूंगा। तो देखो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर अब ये कितना आ गया 25। अब ये सेम चीज को क्या करूं, कॉपी कर दूं नीचे तक, तो सबका पावर में आ जाएगा, पावर ऑफ स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो देखो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। तो ये सबको ऑटोमेटिकली क्या कर दिया इसने, स्क्वायरिंग कर दिया। अगर आपको स्क्वायरिंग नहीं करना था, क्यूब करने का था, तो आपको खाली क्या करना है, ये 2 की जगह पे एडिट करने का है। देखो अभी आप कंफ्यूजन होते हैं, अगर आपको कुछ चीज एडिट करना होता तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते तो आप एडिट का ऑप्शन नहीं नजर आता, आपको कहाँ पे जाना पड़ता, ये फंक्शन बार में ही जाना पड़ता। इसलिए फंक्शन बार में जाके आप अपने कर्सर को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आपने जो चीज लिख दी है वो काम तो हो गया इधर पे, लेकिन आप इधर पे एडिट का ऑप्शन नहीं नजर आएगा आपको। एडिट का ऑप्शन करने के लिए आपको इधर पे जाना पड़ेगा, फंक्शन बार में जाना पड़ेगा। तो फंक्शन बार में जाके कर्सर को प्लेस करो, आप बैक स्पेस करके 2 को हटा के 3 टाइप किए, अब एंटर कर दो, तो आपको 125 आएगा, 5 का क्यूब 125। अब सेम चीज को अगर आपको कॉपी करना है, सबका क्यूब करना है, तो सबका क्यूब कर दो, नीचे तक लेके चले जाओ, तो सबका क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये पावर वाला था। तो पावर के लिए क्या करना पड़ता है, जो नंबर का पावर करना है वो डालो, कॉमा डाल के कितने का पावर, 2 का पावर, 3 का पावर, 4 का पावर, समझे, स्क्वायरिंग करना है, क्यूबिंग करना है, 4 पावर करना है, 5 पावर करना है, तो वो नंबर डाल दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका पावर वाला फंक्शन। तो ये पावर वाला फंक्शन भी हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, पावर वाला फंक्शन हो गया। अप्लाइंग कंडीशन ए यूजिंग इफ। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताने जा रहा हूँ, अप्लाइंग कंडीशन यूजिंग इफ, ये बता के इंशाल्लाह आज का ये टॉपिक खत्म करूंगा मैं। तो अप्लाइंग कंडीशन यूजिंग इफ, तो हम लोग यहाँ पे अभी इफ करके कंडीशन को कैसे यूज करेंगे और उसका क्या बेनिफिट है वो बताता हूँ मैं आपको। पहले तो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जो रिमार्क का मैंने किया था उसको रिमूव कर देता हूँ, उसको ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये रिमार्क वाला जो है वो सेक्शन मैंने ब्लैंक कर दिया, हटा दिया। अब हम लोग को बोला गया है अपने सिलेबस में कि इफ कंडीशन का यूज करो, इफ कंडीशन यूज करना है। अब इफ कंडीशन का मैं यूज कैसे लेके आऊंगा आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ये जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, और आपको पता होना चाहिए कि 20 में से कुछ ना कुछ मार्क्स होता होगा जो स्टूडेंट को पास बोला जाएगा, और अगर उसके कम मार्क्स लेके आया तो उस स्टूडेंट को फेल बोला जाएगा। जैसे 20 में से फॉर एग्जांपल आपका पासिंग मार्क्स है 8, तो जो भी स्टूडेंट ने 20 में से 8 या 8 के अबव मार्क्स लेके आया है तो वो स्टूडेंट पास है, और जो भी स्टूडेंट ने 8 के बिलो लेके आया है वो क्या है, फेल है। तो मैं अपने रिमार्क में
हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टू द मार्क्स पास और फेल दिखाना चाहता हूँ, पास और फेल दिखाना चाहता हूँ। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ वाली कंडीशन यूज करना पड़ेगा। अब इफ वाली कंडीशन को कैसे यूज करूंगा, जैसे कि आपको समझ में आना चाहिए, इफ द स्टूडेंट हैज स्कोर अबव 8 देन वो स्टूडेंट क्या होगा, उसमें टेक्स्ट में क्या दिखाना चाहिए, पास। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको क्या दिखाना चाहिए, फेल। तो अभी मैं क्या करता हूं, पहले तो जहां पे बाजू में रिमार्क में जहां पे मुझे जो सेल में शो कराना है पास फेल, पहले उधर पे सिलेक्ट करूंगा। तो अभी सिर्फ फिलहाल मैं किसका कर रहा हूँ, रोल नंबर 1 का। तो रोल नंबर 1 के मार्क्स के अकॉर्डिंग के हिसाब से मुझे यहाँ पे उसको पास और फेल शो करना है। तो अभी ये रोल नंबर 1 वाले मार्क्स के बाजू वाले सेल को मैंने सेलेक्ट किया, फंक्शन बार में गया, इक्वल टू लिखा। अब मैं यहाँ पे इफ लिख रहा हूँ, तो मैं इफ लिखा इधर पे, ठीक है। अब इफ के बाद ओपन ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। अब इफ के बाद ओपन ब्रैकेट दे दिया। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, क्या कंडीशन लगा रहा हूँ कि जो रोल नंबर 1 का जो मार्क्स है, तो रोल नंबर 1 का मार्क्स कौन से सेल में है, ये बाजू के सेल में, दैट इज Q6। तो उसको सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली Q6 आ गया, ठीक है। इस सेल को सिलेक्ट किया। तो अगर Q6 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, तो कीबोर्ड में जाके ग्रेटर देन का सिंबल लूंगा और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कितने के मार्क्स है, 8। 20 में से 8 पासिंग होता है। तो अगर Q6 का मार्क्स यानी रोल नंबर 1 का टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो कॉमा डाल के, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूज करना, क्योंकि आपको एक से ज्यादा अल्फाबेट्स में लिखना है, शो करके दिखाना है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना, अगर Q6 का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है तो मुझे क्या शो कराने का है, उस स्टूडेंट को पास शो कराने का है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये अगर कंडीशन पास होगी, कंडीशन पास होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि अगर Q6 का मार्क्स जो टोटल मार्क्स रोल नंबर 1 ने ऑब्टेन किया है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होता है, अगर ये सेटिस्फाई होती है कंडीशन, तो मुझे क्या शो कराना है, पास शो कराना है। और अगर नहीं सेटिस्फाई करता है, अगर ऐसा नहीं होता है, तो उसी के आगे कॉमा डाल के वापस से डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको नेक्स्ट जो टेक्स्ट शो कराना रहेगा, वो क्या शो कराना का रहेगा, फेल का। तो इसी तरीके से फेल शो कराना अगर वो आगे की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पास शो करना, इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो मुझे क्या शो कराने का रहेगा, फेल शो कराने का रहेगा। फिर वो ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली आपको देखो यहाँ पे नजर आएगा रोल नंबर 1 का मार्क्स ऑब्टेन किया था 5, अब उसका यहाँ पे रिमार्क में क्या शो कर रहा है, फेल शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 नहीं था, कंडीशन फॉल्स हुई थी, तो इसके लिए उसने आगे का टेक्स्ट शो किया है, फेल। तो इफ वाली कंडीशन को यूज किया है। इफ वाली कंडीशन में Q6 जो रोल नंबर 1 का टोटल मार्क्स था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होता तो पास दिखता, अगर वो नहीं हुआ, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, इसके लिए उसने क्या शो किया, फेल शो किया। अब एक बार मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, अब यही सेम फॉर्मूले को मैं नीचे तक पेस्ट कर दूंगा, लेके चले जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली वो सारा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा हर सेल के लिए। अब जो स्टूडेंट पास हैं, अबव 8 है, तो उनके उधर पे पास दिखाई देगा, जो स्टूडेंट बिलो 8 है उनका फेल नजर आएगा। जैसे कि रोल नंबर 14 ने 14 मार्क्स स्कोर किया था, उसका पास शो कर रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे जितने भी स्टूडेंट अबव 8 है तो उनका पास शो हो रहा है, और जितने भी स्टूडेंट बिलो 8 है तो उनका फेल शो कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ने इफ का कंडीशन को भी अप्लाई किया, इफ का कंडीशन को भी अप्लाई किया। So with the help of this if condition, we are able to give the remark to our student, those who are pass or fail in a particular subject in a particular marks. तो ये सारा चीज आप एक्सेल में इजीली आप बना सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सच फॉर्मूलाज। खाली आपको एक ही सेल में काम करना पड़ेगा, एक ही सेल में फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बाकी का सारा कॉपी कर दो, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होकर आपको दिखाई देगा। So this is the use, this is the benefit of your Microsoft Excel. इसलिए Microsoft Excel प्रीफर किया जाता है डेटा को बनाने के लिए, डेटा कैलकुलेशन करने के लिए, डेटा मॉनिटरिंग करने के लिए, डेटा को यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। तो बहुत इजीली अपना टास्क हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सेल। तो इस सेल के हेल्प से हम लोग इजीली क्या कर लेते हैं, सारा काम
कर लेते हैं इजीली। तो आई होप आप लोग को दिस इज अ वर्किंग विथ फॉर्मूला शायद मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। आप लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर, समझ में आया। ओके तो मैंने आज के लेक्चर में ये चैप्टर नंबर 3 जो स्प्रेडशीट का चैप्टर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चैप्टर है, उसमें मैंने वर्किंग विथ फॉर्मूला का सेक्शन मैंने कवर किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर आल्सो विद द हेल्प ऑफ 2 टॉपिक्स रिमेनिंग, वर्किंग विथ चार्ट्स एंड सम एडवांस ऑपरेशन of this Microsoft Excel which we are going to see in our next lecture. So till the time, thank you very much for understanding, listening and joining. इसी तरीके से आगे के लेक्चर में ज्वाइन करो and we are going to end this chapter also. So once again, thank you very much to all of you.